সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো, আমিও ভালোই আছি। আজকে যাচ্ছি ট্রেনিংয়ে জলপাইগুড়িতে। আমাদের 3 দিনের ট্রেনিং আছে, তো ওখানেই যাচ্ছি, ওখানেই থাকবো। ছেলেকে ফিরে যাচ্ছি, সেই কান্নাকাটি করছে। আমরা অনেক মহিলা মিলে এখানটায় ট্রেনিং করব। প্রায় 40 জনের উপরে হবে ট্রেনিং করার জন্য আসবে। আবার ট্রেনার আছে 2 জন। তারপরে ওখানেই খাওয়া দাওয়া, হোস্টেলের মতো জায়গা, ওখানে খাওয়া দাওয়া সব কিছুই হবে। তো চলো বন্ধুরা, দেখতে থাকো আজকের ভিডিওটা। স্টেটের জন্য অপেক্ষা করছি। এখান থেকে ডাইরেক্ট স্টেট আছে জলপাইগুড়ি, মানে 8:30 পৌনে 9টার দিকে ঢোকে। এখন বাজে কয়টা, 8:36 বাজে। পৌনে 9টার সময় আসবে স্টেটটা, হয়তো অপেক্ষা করছি। কালও গিয়েছিলাম, ও মানে ছেলেকে নিয়ে গেছিলাম কালকে। ও প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছিল। একবার তো রাস্তায় চলে এসেছিলাম যেখান থেকে বাসে উঠবো, তো ছেলে আবার মনটা খারাপ করছে, এর জন্য ছেলেকে আবার নিয়ে আসতে গেলাম বাড়িতে। ওকে থাকতে দিল না, কারণ ওর চোখ উঠেছে। আর অনেক মহিলারা ওখানে থাকবে, হয়তো ওটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। বাচ্চাও আছে, কয়েকজন বাচ্চা নিয়ে এসছে। সেজন্য যদি ওদের আবার কোনো প্রবলেম হয়ে যায়, সেজন্য ওকে থাকতে দিল না। তাই কালকে রিটার্ন করেছি, আবার আজকে সকালে যাচ্ছি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এই যে দেখো, এখন তিস্তা ব্যারেজে, গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ, মানে দেখো কত জল, মানে সমুদ্রে যেরকম ঢেউ ছাড়ে সেরকম ঢেউ ছাড়ছে জলগুলোতে। স্টেট বাসটা প্রচণ্ড স্পিডে ছিল, সেই জন্য ভালো করে ভিডিও করতে পারছি না। আর এই জানলাটা, আমি যেই সিটে বসেছি সেই জানলাটা খুলে না, সেই জন্য ভালো করে তোমাদের দেখাতে পারছি না। তোমরা বুঝতেই পারছো যে বাসটা ঠিক কতটা স্পিডে আছে। আর গাজলডোবার রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ, বর্ষার দিনে একদম ভেঙে চুরে একাকার হয়ে যায়। আমি একবার মানে বাসের ঝাঁকুনিতে একবার উপরে উঠছি, একবার নিচে নামছি, এরকম অবস্থা। এই যে বাসের স্পিডটা দেখছো, আমি কিন্তু ভিডিওতে কোনো স্পিড বাড়াইনি, বাসের স্পিডটাই এরকমই আছে। এই যে দেখো, আমি এখন ক্লাসরুমে বসে আছি, মানে আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, সেই জন্য সোজা টিফিনটা ঝটপট খেয়ে ক্লাসরুমে চলে আসলাম। এটা ডিআরডিসি ট্রেনিং হল। আমরা এখানে 6 মাস পরই 3 দিনের জন্য আসি। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, আবার চলে যাই। একজন মহিলা কিছু বলছে, খুব ভালো করে মন দিয়ে শুনো, কথাটা খুবই ইন্টারেস্টিং ঘটনা। मैं लिली खजूर नागरायण का ब्लॉक, मैं शिशु प्रचार के ऊपर काम की हूँ। एक ऐसे मेरा ही गांव का एक घटना है जो बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक गरीब घर का मतलब कि बेटी को क्या किए थे, 15 साल की लड़की को एक वही गांव का एक मतलब पुरुष क्या किया, उसको मतलब नागरायण का काम करने के लिए लेके मतलब जाएगा बोल के बोला। उसको बहला फुसला के उसका मतलब ड्रॉप आउट बच्ची थी, उसको बोले कि आधार कार्ड और आपको स्कूल पढ़ाया जाएगा। तो उसको लेके गए सुल्खापड़ा से क्या किया, एक दिन जाके सुल्खापड़ा, उसके बाद में उठो क्या किया, दूसरा दिन दिल्ली पहुंचा दिया। अब दिल्ली पहुंचा के वहाँ पे बेच दिया किसी का घर में, आप बिक्री कर दिया। आप वो तो नहीं जानते, आप मुझको तो जहाँ पे काम, अगर मेरा आधार कार्ड बन जाएगा मुझको पैसा मिलेगा, उसको ऐसे भी पहला फुसला गया कि पैसा मिलेगा आपका परिवार का के लिए मतलब कि
प्रॉपर्टी होगा, मतलब ज़्यादा मतलब का घर में जो समस्या है वो पूरा होगा। उसके बाद में दिल्ली लेके गए, वहाँ पे काम किए, 15-18 महीना काम किए वो लेडी। वो 15 साल की है, 15 साल की थी, गए 18 महीना काम किए वहाँ पे। अब उसका वहाँ पे हैरेसमेंट हो रहा था, उसका गलत व्यवहार कर रहे थे मालिक, जो मालिक था वो उसका वाइफ भी थी, वो क्या करती थी काम चली जाती, तो उसका गलत व्यवहार किया जाता था वहाँ। तो वहाँ पे जाए मतलब 18 महीना काम करने के बाद वो क्या की कि उसका पिताजी को फ़ोन किया और बोला कि मुझको लेने के लिए दिल्ली आओ। तो उनका पिताजी एक तो गरीब है, वो कैसे जाएगा। उसके बाद में वो क्या किया, फ़ोन किया। अब उसका पिताजी बोल रहा है कि नहीं, एजेंट को बोलना पड़ेगा, एजेंट को मतलब उनका घर जाना पड़ेगा। उसका समय वो लेडी समझ पा रही थी, तो क्या की भाग गई वहाँ से। अब उसका पिताजी मतलब एजेंट को मतलब खोजने गया, एजेंट को खोजेगा तो एजेंट मिलेगा नहीं, जब लेने के समय में मिल गया, लेकिन जब खोजने जाएगा तो मिलेगा नहीं। उसके बाद में क्या हुआ कि वो उसका पिताजी वहीं पे रह गया। अब वो लेडी क्या की भाग गई वहाँ से। अब दिल्ली शहर इतना छोटा नहीं है कि वहाँ से कोई खोज मतलब खोजे। वो वहाँ का मालिक क्या किया, एक डायरी किया और बोल रहा है कि वो अपना मतलब यहाँ पे काम कर रहा था, इतना दिन किया और यहाँ से भाग गई, निकल गई। अब निकल गई, वो तो एफ.आई. कर दिया कि मेरा घर में ऐसे। वो अपने बचने के लिए एक्चुअली वहाँ पे एक तो राशन कार्ड है, उसमें 18 साल हो गया था, लेकिन एक्चुअली उसका 15 साल हुआ था, 15-16 ऐसे हुआ था। वो राशन कार्ड देके एफ.आई. कर दिया। एक्चुअली वो अपने खुद बचना चाह था। उसके बाद में वो एफ.आई. कर दिया। यहाँ उसका पिताजी को बोला कि आपका लड़की घर से निकल गई है। अब वो उसका पिताजी क्या किया कि मैं अब क्या करूँगा, उसको पता नहीं। वो बोला कि कोर्ट में जाओ और 18 साल का एक सर्टिफिकेट बना, उसको धमकी दिया। उधर का दिल्ली का मालिक मतलब कि उसका सर्टिफिकेट बनाने के लिए 18 साल के लिए बोला। अब क्या किया, वो कोर्ट भी गया लेकिन नहीं बना। वो घर गया, घर जाके 1 सप्ताह जैसे चुपचाप था, किसी को बताया नहीं। उसके बाद में मुझको पता चला उसका दादी, वो लड़की का दादी मुर्गी खोज रही थी। हम मुर्गी खोजने के लिए हम लोग घर तरफ गई थी, तो मैं बोली कि क्या करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि मेरा वो नती है, वो तो घर से मतलब दिल्ली कमाने गई थी और तो घर से निकल गई। अब निकल गई है तो मैं बोली कि ठीक है, कैसे निकली, तो भाग गई है वहाँ से डर के मारे। अब देखो डर के मारे निकली है तो मुर्गी क्या करेगी, बोल रहा है कि नहीं पूजा करवाएंगे तो आएगा, तो झामती करने से कोई आएगा क्या। तो उसके बाद में बोली कि आपका बेटा को भेजिए मेरा। उसका बेटा आया, मैं पूछी कि क्या हुआ नहीं हुआ, और डिटेल्स बताए। मैं एक वीडियो बनाई, उसको वीडियो को शेयर की। उसके बाद में मेरा जो संस्था है वीडियो वॉलंटियर, उसमें शेयर की। वहाँ से एक स्टेप लिया कि अब दिल्ली में मतलब जाके किसको खोजेंगे, उतना बड़ा शहर। एक संस्था है वहाँ पे शक्ति वाहिनी, वहाँ पे वो लोग रिपोर्ट दिए, शक्ति वाहिनी को बताए कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। तो यहाँ थाना में भी गए, मैं एफ.आई. दिल्ली के वहाँ का जो एफ.आई. था उसका मतलब डबल ये नहीं होता, जीडी नंबर, तो जीडी नंबर दे के एक अब मुझको पता नहीं था कि क्या करना है। मैं वहाँ पे जाके थाना आईसी को बोली कि ऐसे ऐसे धक्का हुआ। अब मुझको पता नहीं था कि पूरा डिटेल्स में लिखना होता। मैं जैसे तैसे भी लिख दी। उसके बाद में 6 महीना बीत गया, 7 महीना बीत गया। उसके बाद में कोई मैं फिर में हर सप्ताह लेने गई जाती थी मतलब थाना में कि क्या कर रहे हैं आप लोग। वहाँ पे मुझको हर समय झूठ बोला जाता था कि हम लोग मैसेज किए हैं, और रिप्लाई देगा तो। अब रिप्लाई देने के लिए मतलब वो उसका इंतजार करने से तो नहीं होगा ना। एक लड़की खो गया है, उसको खोजना जरूरी है। उसको आप मालिक को बार बार फोन किया जा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है रिसीव नहीं करता है। अब रिसीव तो करेगा तो फंसेगा, ऐसे हो गया। उसके बाद में 7 महीना बाद में वो तो एक लड़का का नंबर याद था, यूट्यूब बनाया था, एक लड़का बामन नगर का, उसका नंबर याद था, उसको फ़ोन किया। अब उसको फ़ोन किया मतलब उसका माइंड में था शायद मतलब दूसरा जगह कोई कॉन्ट्रेक्टर उसको रास्ता में मिला, वो कॉन्ट्रेक्टर लेके गया वहाँ। अब वहाँ पे 6 महीना रखा। उसका भी एक तो ये था आइन के हिसाब से वो गलत था, बेआइन था ना उसको रखना। उसको बताना चाहिए था थाना में कि ये लड़की यहाँ पे मिला, वो भी नहीं। उसके बाद में उसको जिसका कॉन्ट्रेक्टर का एक उसका वाइफ क्या कि उनका भाई के साथ में शादी करने के लिए उसको रखा। अब शादी करने के लिए रखा। अब वो बोल रहा है कि नहीं उसको पसंद है, मतलब जबरदस्ती उसका पिताजी को फ़ोन कर रहा है बार बार की। जब फ़ोन हुआ मतलब वो वीडियो कॉलिंग किया, दिखाया अपना पिताजी को, मैं
उसके बाद में उसका जो घर का कंडक्टर की वाइफ थी वो बोल रहा है कि आपका लड़की को मेरा भाई से शादी करना पड़ेगा, आप लोग आइए शादी करवा के आप लोग चले जाइए, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद में फिर हम लोग मतलब मैं गई यहाँ थाना में, बताई कि वो लड़की मिली, तो आप लोग क्या प्रोसेस करेंगे लाने के लिए। अब एक्चुअली वहाँ पे शक्ति वाहिनी पूरा रेडी है। वहाँ थाना में क्या हुआ कि जब एक्शन नहीं ले रहा है तो दूसरा एक्शन लेना पड़ेगा। मुझको बार बार पता ऐसे बोल रहा है कि आप इसमें फंस सकते हैं। मैं बोली कि कैसे फंसूंगी, एक बच्चा को लाना है दिल्ली से, खोज के लाना है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि नहीं आप फंसेंगे, बार बार मतलब अगर ऐसे केस करेगी तो वहाँ पे दिल्ली जाना पड़ेगा, हेरेसमेंट होगा, आपको जाना पड़ेगा, उसका पेरेंट्स को जाना पड़ेगा, पेरेंट्स के पास उनका पैसा नहीं है, ऐसे बोला। उसके बाद में वहाँ पे मैं बोली कि देखिए आपको जो करना है वो कीजिए, जहाँ पे केस करना है मतलब वो कीजिए, हम लोग मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में नागरिकता में कभी भी 0 एफआईआर नहीं हुआ है। आप ये छोटा बच्चा जब ये होता है तो उसका मतलब 0 एफआईआर होता है ना। उसके बाद में उनको कितना बार रोज दिन समझाया, 0 एफआईआर किया। धूल मतलब कि वो फॉर्म में धूल मतलब लगा था, वो बोल रहा है कि कितना दिन मतलब ये नहीं हुआ था, आज हुआ, मिली आपके बदल ये 0 एफआईआर। उसके बाद में मैं आईपीएस को मतलब फोन की, आईपीएस का नंबर मिला, आईपीएस को बताई। उसके बाद में सीआईडी के पास में गई, सीआईडी मतलब कि सीआईडी के पास में मतलब वो भेजी उसको। उसके बाद में केस हुआ, केस होने के बाद में वहाँ पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद में क्या किया, वहाँ पे शक्ति वाहिनी जो है हम लोग का संस्था, वो लेडी का जिस घर में रहती थी, हम लोग बार बार कुछ नहीं कर, वो नहीं बताती कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका जगह बताइए, ये लोग ये संस्था वाले जाके वो लेडी को लेके आएंगे। वो कभी नहीं बताई, वो बोले कि दीदी आइए मैं आपको रिसीव करूँगा। वैसे क्या किया हम लोग इधर से, उनका पिताजी अब इधर पूरा केस हो गया, सीआईडी के पास में चला, एंटी वुमन ट्रैफिकिंग। अगर पुलिस ऐसे नहीं कर रहा है तो हम लोग को बाद में एंटी वुमन ट्रैफिकिंग का उसमें केस करना पड़ता है, 0 एफआईआर। उसके बाद में हम लोग यहाँ से दिल्ली जाने के लिए उतना पैसा भी नहीं है, आप यहाँ से मतलब भेजे। उनका पिताजी और मेरा काका एक आदमी गया दिल्ली। आप वहाँ दिल्ली गया तो दिल्ली में तो अब खोजना भी मुश्किल है। उसके बाद में जो शक्ति वाहिनी था वो उनसे मिला। उसके बाद में क्या किया, वो लेडी को यहाँ से सीआईडी लोग वहाँ पे ट्रेक करवाए कि उनका घर का नंबर दीजिए, जो फोन आ रहा है उसका ट्रेक करवाए। वहाँ से बार बार उसका घर में पुलिस जा रहा था, बार बार उसका पिताजी को गाली दे रहा है, मेरा घर में पुलिस आ रहा है, मेरा माहौल खराब हो रहा है, उसको बार बार गाली दे रहे हैं। तो एक बच्ची को रखी है, उसका भी एक जिम्मा बनता है ना कि मतलब कि थाना में वो बोल के रखता कि मेरा घर में आई है, मैं इसको रास्ता से लेके आएगी। लेकिन वैसे नहीं हुआ, वो तो फिर से डरने लगी कि मुझको ना उठा के ले जाए। मतलब उसको शर्म हो रहा है गाँव में, मतलब कि जो दिल्ली का ये था क्या बोलते हैं टोली, उसमें उसको शर्म लग रहा था कि पुलिस बार बार आने के लिए, पुलिस जा रहा था लेकिन उसको लेडी को मतलब वो नहीं निकाली। उसके बाद में वो देखिए मोबाइल नंबर CWC में लेके गए, महिला आयोग वहाँ पे लेके रखे। उसके बाद में जो वहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब कि जो थाना पुलिस उसको चाहे एक सप्ताह जैसा रखा। फिर वहाँ पे दिल्ली में रिपोर्ट हुआ, वहाँ पे मतलब वो केस को मतलब बढ़ते ही जा रहा है, मतलब दिन बढ़ते जा रहा है। इधर मेरा घर से जो गया है उसका सब पैसा खत्म, मतलब 20,000 रुपया मतलब पैसे ही खत्म हो गया, बार मतलब पैसा। और वहाँ पे एक भैया वो हेल्प किया, हेल्प करने के बाद में जो महिला आयोग रखा था उसको, तो इतना दिन के बाद में वो फिर घुमाया। वो मालिक मतलब कि वो आईसी को, वहाँ दिल्ली का आईसी को पैसा दिया। पैसा देने के बाद में क्या किया, वहाँ पे बच्ची को बार बार मतलब पूछा जा रहा था, स्टेटमेंट तो लेगा ना, स्टेटमेंट लेगा उसके बाद में तो कुछ लिखेगा। अब स्टेटमेंट में बार बार बोला जा रहा है कि नहीं मैं इसे ठीक थी, अगर वो गलत बताती तो वहाँ पे गलत स्टेटमेंट होता ना, वैसे नहीं हुआ। लेकिन उसको क्या किया, एक सप्ताह ये खत्म हो गया, वहाँ से लेके आए, वहाँ से छुड़ा महिला CWC से वहाँ से निकाले और उसका पिताजी का हाथ में दिए। उसके बाद में पिताजी लेके ট্রেনিং হলে বসে আছি, সকাল থেকে আর কোনো মানে ভিডিও করতে পারিনি, ক্লাসরুমে ছিলাম, প্রচণ্ড আমারও চোখের
সমস্যা হয়ে গেছে, সমস্যা আনপ্লাস করে বসে আছি। এই দেখো আমাদের সিটগুলো।